30 minutes past. Yes, sir. We'll start. Have the forest guards and foresters and range officers, are some of them also in this meeting? Sir, I cannot make out, but Rajneesh, some forester or forest guards If have this joined. query asks some of forest guards, foresters, range officers. सर वहाँ इंटरनेट का दिक्कत है, मैंने बोला था ज्वाइन करने के लिए, इंटरनेट का सर दिक्कत है। तो स्टाफ लोग बताया कि सर जो निर्णय होगा हम लोग यहाँ से भेज देंगे बना के। नहीं, मैं ऐसे आई एम रिकॉर्डिंग दी लेक्चर सर, आई विल शेयर विद डीएफओस लेटर ऑन। आवाज सर जा रही है ना? हाँ, आ रही है सर। रिकॉर्डिंग सर भेज दिया जाएगा? हाँ, हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे जी सर, ठीक है सर। हम इसमें इंटरेक्शन हो सकता था, उनकी कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स क्लियर हो जाते, राइट, बिकॉज मेन पर्पज यही था कि उनको थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि व्हाट इज ग्रीन इंडिया मिशन एंड व्हाट इज देयर रोल दे आर रिक्वायर्ड टू एट द गार्ड लेवल, एट द फॉरेस्टर लेवल, एट द रेंज ऑफ, बिकॉज हमारी सभी की डिपेंडेंस उन पे रहती है। कोई भी काम होगा तो वही जो है आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे इसमें लैंडस्केप्स की बात है, L1, L2, L3, तो उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। तो कुछ डिविजन्स में यदि गार्ड्स, रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्टर्स कुछ हैं जो वहाँ हेडक्वार्टर में सर कुछ रेंज अफसर्स ज्वाइन किए हैं, कुछ रेंज अफसर ज्वाइन किए हैं सर, जिससे RFO टुंडी अभी ज्वाइन किए हैं सर। आर एनी फॉरेस्टर्स और Sir, I think we should start, sir. May I start, sir? You are mute. Okay. We will only to see actually or who all are there. Can we see? Hello. Yes, sir. Hello. No picture is. Yes. So I think let's start. And Yes. in case some guards, foresters, and range officers, if more can join, Yes, let the DFOs instruct their people. So whoever can be there, let them join. So we now start with the lecture. Yes, sir. Okay. Okay. So, respected Sri D.K. Tivatia, sir, all senior colleagues, and all the participants, and all DFO colleagues. Today, we have a great privilege that D.K. Tivatia, sir, having an illustrious career, has agreed to speak for the topic Green India Mission.
for the benefit of all the divisions, and especially forester and forest guards and range officers, and also DFOs. But basically, the ground level implementation of Green India Mission is done by forester and forest guards and range officers. So if they participate in 5 minutes or so, it will be more beneficial. Nevertheless, we can start this lecture with Sri D.K. Tewatia sir. At the outset, I will, I don't think D.K. Tewatia sir is known to all, and he is a known figure, and he has illustrious career in Jharkhand Forest Department and other department as well as Government of India. But I will introduce briefly as about sir. Sir is basically from Modi Nagar, Meerut, Uttar Pradesh. Sir has done his schooling at Modi Nagar. Sir completed his BSc from Meerut College, Meerut in 1981. Sir has done BSc in Civil Engineering from Punjab Engineering College, Chandigarh in 1985. Sir completed his MSc in Engineering in Highways and Bridges from Punjab Engineering College, Chandigarh in 1987. And Sir joined this service, this prestigious service, Indian Forest Service, in 1988, and has done his training and foundation course up to 1990 in National Forest Academy as well as Lavashna, Mussoorie. Sir has done his attached officer posting in Sahabad Forest Division at Sasaram from 1990 to 1993. 3 years. 3 years of probation Sir has done as attached officer. Sir served as Divisional Forest Officer, his first posting at Munger, then at Chaibasa, then Darbhanga, then Patna and Ranchi from 1993 to 2003. Sir has served as AIG Forests in Ministry of Environment and Forest Climate Change, Government of India from 2003 to 2007. Sir has served as Director in Ministry of New and Renewable Energy, Government of India from 2007 to 2010. Sir has underwent training in public administration at Indian Institute of Public Administration, New Delhi in 2011. Sir has served as Conservator and Chief Conservator of Forest at various posts in Department of Forest, Government of Jharkhand, and as Director in Forest Development Corporation at Ranchi from 2011 to 2014. Sir has served as a Special Secretary, Department of Energy, Government of Jharkhand in 2015. And he has served as Director of JAREDA from March 15 to June 2016. Sir has served as Director in Handlooms, Handicrafts and Sericulture in Department of Industries as well from May 16 to November 16. Sir has served as CEO Khadi Board in Jharkhand in 2016 and MD in Jharcraft in Jharkhand in 2016. Sir has served as CBO in various PSUs of Government of India like National Fertilizers Limited from December 16 to November 2019, and has had additional charge of CBO Rashtriya Chemicals and Fertilizers Mumbai from 17 and CBO Ramagundam Fertilizers and Chemical Limited from 2017 to 2019. As you know, Sir is presently serving as additional PCCF FDA since December 2019 and holding additional charge of APCCF Com Director Extension Forestry Hazaribagh since July 2020. Sir has his hobbies like playing badminton, lawn tennis, driving and traveling. Sir has keen interest in music, trekking. So friends and seniors and other colleagues and other staffs and officers, Sir has illustrious career and a very inspiring profile. And I am sure that
all of us will get benefit out of his lecture today on Green India Mission. So I will not take much of time, and I will request Sri Diket Vetia sir to start the meeting. And also I will inform you that our CCF training, Diksha madam has also joined at this platform, and she is also listening to us. Sir, over to you, sir, please. Good morning, namaste to sabhi officers and range officers and our field staffs, forest guards and foresters. Very good morning to each of you. सबसे पहले आज का ये प्रेजेंटेशन या लेक्चर का जो कार्यक्रम रखा गया है कि ग्रीन, इट इज अबाउट ग्रीन इंडिया मिशन. मेरी जो प्रेजेंटेशन रहेगी, हेलो, यस सर, यू आर ऑडिबल सर, प्लीज गो अहेड सर. लैंग्वेजेस में इसको थोड़ा मिश्रित रखेंगे बिकॉज बहुत सारी चीजें, टर्म्स ऐसी हैं जो इंग्लिश में ही, बिकॉज भारत सरकार की योजना है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी या फॉर्मेट्स या ये इंग्लिश में है. और क्योंकि इसमें हमारे कुछ रेंज ऑफिसर्स और फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स भी इसमें टारगेट के लिए रखा गया था कि उनको भी इसकी के बारे में एजुकेट हो जाए, तो इसलिए दोनों लैंग्वेजेस में मिक्स करके चलेंगे. और सबसे पहले मैं जो है इसका स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा बता दूं कि किन किन पहलुओं पे हम जो है आज इस पर बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अभी ये 12:25 हुए हैं, तो लगभग 1:15 बजे तक मैक्सिमम हम इसको कंक्लूड भी कर लें. आज का स्ट्रक्चर, और एक रिक्वेस्ट सभी पार्टिसिपेंट से रहेगी कि अपने जो है अपना स्पीकर को जो है म्यूट पोजीशन में रखें, और बाद में जैसे जब थोड़ा समय हम कोशिश करेंगे कि रखें, कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस हों क्लैरिफिकेशन के लिए, तो वो तो एट द एंड हो. प्लीज नोट योर क्वेरी और क्वेश्चन, और उसको लास्ट में उसको आप पोज करें, सो दैट आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई एंड आंसर द क्वेश्चन. सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि ग्रीन इंडिया मिशन क्या है. उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन इंडिया मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मूल उद्देश्य क्या हैं. उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड स्टेट में क्या सिनारियो है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट लैंड्स के बारे में, और जो है हमारी दूसरी लैंड्स के बारे में, कम्युनिटी लैंड्स के बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे कि जिम जो एक योजना है वृक्षारोपण की या एफोरेस्टेशन की, कई सारी योजनाएं समय समय पे चलती रही हैं, तो जिम में ऐसा क्या चीज थोड़ी अलग है, उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो रेंज ऑफिसर, फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स का रोल जो है, किन किन जिम के किन किन स्टेट उनको रोल प्ले करना है. तो रोल प्ले करना है तो उनको स्कीम को समझना जरूरी है. और बाद हम बात करेंगे लैंडस्केप्स का सिलेक्शन कैसे करना है. लैंडस्केप का सिलेक्शन कैसे करना है, इसमें लैंडस्केप्स की बात आएगी. L1, L2, L3 तीन प्रकार के लैंडस्केप्स का चयन हमको करना होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे. इसके बाद हम बात करेंगे जिम के अंतर्गत किस किस प्रकार के कार्य, जिनको हम सब मिशंस कहते हैं, सब मिशंस वो क्या हैं. और उसके बाद बात करेंगे क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस. क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस क्या हैं, तो केवल वृक्षारोपण के अलावा हमें और भी कुछ चीजें करनी है, वो क्या है. और उसके बाद बात करेंगे कि जिम का सेटअप क्या है, विलेज लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे और केंद्र सरकार के लेवल पे क्या सेटअप है, जिससे थोड़ा समझ में आए कि हम कहाँ से क्या चीजें बनाते हैं, कहाँ तक जाती हैं, अप्रूवल होता है और फिर वापस आती हैं और फिर विलेज लेवल तक जाती हैं. और उसके बाद लास्ट में थोड़ा एक बात करेंगे हम कि हमारे स्टेट का जो पर्सपेक्टिव प्लान है और एपीओ जो ग्रीन इंडिया मिशन में बनाना है और भारत सरकार को भेजना है, उसमें हम अभी कहाँ हैं और हम सबको प्रायोरिटी पे रिस्पॉन्ड करना है अपने अपने प्रपोजल्स जो अवेटेड हैं ऑलरेडी. तो अब हम जो इसके अपनी लेक्चर
का प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं कि व्हाट इज जिम। जिम जो ये हमारा क्लाइमेट चेंज के आलोक में जो एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो बनाया गया भारत के लिए, भारत में, उसके अंतर्गत 8 मिशंस हैं। ऑफिसर्स तो इसमें से कई सारी चीजें पहले से जानते हैं। 8 मिशंस में से ये भी एक मिशन है कि नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। जैसे सोलर मिशन है, लाइवलीहुड मिशन है, वाटर वाला है, खेती के बारे में है, तो ये एक मिशन उन्हीं में से एक। और इसकी जो है प्रेपरेटरी काम जो है 2011 में शुरू हो गया था ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। तो प्रेपरेटरी एक्टिविटीज में यही था कि लोगों को गांव तक थोड़ा उनसे हम संपर्क करें और कुछ प्रेपरेटरी एक्टिविटीज, जैसे हम एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज करते हैं, तो कुछ प्रेपरेटरी एक्टिविटीज ब्रिज प्लान के तहत जो है 2011 से 14 के बीच में ये एक्सरसाइज चली। तो उसमें हमने गांव में जाकर के कुछ यूजफुल चीजें, जो उनकी कोई समस्या थी, कोई चीज की, कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज थी, कोई तालाब था, कोई पुल था, कोई सड़क था, कोई हैंडपंप था, कोई बिजली की कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें थोड़ा इंटरवीन करके कुछ उसमें से पैसा भी हमारे पास था, उसमें उनके लिए हमने कोई यूजफुल चीजें बनाई और उसी के साथ हमने स्कीम के बारे में उनको एजुकेट किया। और इसकी फिर शुरुआत 15-16 से जो है इस स्कीम की शुरुआत हो गई थी। उसमें सभी स्टेटों से एपीओ पर्सपेक्टिव प्लान मांगे गए थे 5 साल से 10 साल अवधि के। तो हमारे यहाँ से भी 2015 में हमारे यहाँ 10 साल का पर्सपेक्टिव प्लान बना करके उस समय भेजा गया था। लेकिन वो क्योंकि शुरुआती स्टेज थी, तो शुरुआती स्टेज में बहुत बहुत थोड़े से क्षेत्र लिए गए थे। केवल 5 डिविजन्स में से 6, एक रेंज लगभग लेकर के 5 डिविजन्स में से, और उनमें से जैसे देवघर, सरायकेला और लोहरदगा, चतरा नॉर्थ, इनमें से के एक रेंज में से थोड़ा थोड़ा एरिया लिया गया, जिससे कि कोई बहुत बड़ा हम प्लान और ढंग का प्लान उस समय नहीं बन सकता था। क्लाइमेट चेंज से जो है हम सभी फैमिलियर हैं। क्लाइमेट चेंज के जो है कुछ गंभीर परिणाम आगे आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल में जो है काफी अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट किए गए हैं, जो हम जगह जगह पे सुनते हैं। और क्लाइमेट चेंज का जो मूल जो चीज एक आम आदमी के रूप में या ऑफिसर्स के रूप में हमें समझ में आता है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कि हमारा जो है पूरा जो वायुमंडल है पृथ्वी का, वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जैसा कि पहले कभी नहीं था। लेकिन अभी पिछले खासकर जो है पिछले 50 सालों में इसमें जो है वार्मिंग में काफी जो है ऑब्जर्वेबल चेंजेस दिखाई दिए, जिसको हम डे टू डे टर्म्स में यदि समझें तो वो हो जाता है कि हम जो है टेम्परेचर्स जो है कुछ जगहों के राइज कर रहे हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है। रेनफॉल किस जगह कितना होता है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उतना स्टेबल रेनफॉल का वो नहीं रहा है कि इतने मिलीमीटर बारिश एक एनुअल रेनफॉल होता है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। कुछ जगह पे रेनफॉल बढ़ गया है, कुछ जगह पे रेनफॉल घट गया है, दोनों ही बातें। और रेनफॉल का पैटर्न भी बदल गया है। जैसे पहले था कि मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर महीनों में मेन बारिश हो जाती, पैटर्न भी बदल गया है। नंबर ऑफ रेनी डेज और उन रेनी डेज का स्प्रेड वो भी चेंज होगा। तो इस प्रकार जो है वेदर को कहें डे टू डे टर्म्स में, या क्लाइमेट चेंज कहें कि पूरे साल का जो जलवायु अलग अलग जगहों की कैसी रहती थी, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। और जब जलवायु बदलती है, वेदर और वेदर के पैटर्न्स बदलते हैं, तो उनका असर हमारे जो ये लिविंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो हमारी खेती हो जिसपे हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं, बिकॉज खाना सभी को चाहिए, या हमारे वन हैं, वन पे भी बहुत सारी जो है लोगों की डिपेंडेंस है, बहुत सारी चीजें, या इकोलॉजिकल सर्विसेज को देने वाला या प्रदान करने वाला फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है उसमें कंट्रीब्यूटर है। अब हम आते हैं कि ये जिम, तो इन चीजों को लेकर के ये ग्रीन इंडिया मिशन जो है लॉन्च हुआ था। हम आगे के ऑब्जेक्टिव्स में
मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत फाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो हैं कि अगर हमें ये क्लाइमेट, बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खतरे, जो मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती चली जाएंगी, उनको हम कैसे कम करें, मिटिगेट करें, कुछ चीज़ों के बारे में हम तैयारी करें, एडेप्टेशन। और इसके अंतर्गत हम फॉरेस्ट में रहते हुए एज फॉरेस्ट ऑफिसर्स क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा मैंडेट बेसिकली फॉरेस्ट्री है और फॉरेस्ट लैंड है, और फॉरेस्ट लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उन सब के बारे में हम ध्यान देंगे। तो इसमें मूल बातें, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए हम जो है मूलतः दो रूप में काम करेंगे कि एक तो फॉरेस्ट कवर को हम बढ़ाएं, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को बढ़ाएंगे, तो उससे हमारा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का अनुपात या क्वांटम बढ़ेगा। तो इंक्रीज करना है फॉरेस्ट कवर को 5 मिलियन हेक्टेयर से 10 साल के पीरियड के लिए प्लान किया गया है, 2015 से 25। अब उसमें कुछ विलंब और कुछ डिलेज हैं, तो थोड़ा आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर, फॉरेस्ट लैंड दोनों शामिल। दूसरा, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑन अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर, 5 मिलियन हेक्टेयर इंक्रीज करना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। 5 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है, खासकर जो 5। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो इकोसिस्टम सर्विसेज, यदि हम ये सब करते हैं तो इकोसिस्टम सर्विसेज ऑब्वियसली उससे इंप्रूव होगी, कि हवा, ऑक्सीजन ज्यादा पैदा होगी, बायोमास ज्यादा पैदा होगा लोगों के लिए, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये सभी चीजें होंगी, और बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, बनी रहेगी। हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सभी चीजों में बढ़ोतरी। और चौथा ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम बढ़ाना, और इसके अंतर्गत भी 3 मिलियन हाउस होल्ड्स का लक्ष्य रखा गया है। 3 मिलियन मतलब 30 लाख, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन ये है कि जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, उनमें उनकी कंडीशंस में इंप्रूवमेंट। और पांचवा एक मेन ऑब्जेक्टिव है एनहांस एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन, जिसका क्वांटिटी दी गई है 5 से 60 मिलियन टन बाय 2020। तो ये तो जो बाद के जो 3 हैं, जो हम पहले जो 2 चीजों को यदि करते हैं तो 3 जो बाद के ऑब्जेक्टिव। अब हम आते हैं झारखंड स्टेट में क्या सिनारियो है हमारा, कितनी लैंड हमारे पास है और किस तरह की उसकी कैटेगरीज हैं। झारखंड राज्य में हमारे पास जो टोटल जो ट्री कवर है, उसकी जो मात्रा है स्क्वायर किलोमीटर में, वो 26,475, 26,475 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें हम मोटे तौर पे 4 कैटेगरीज में इसको तोड़ के देखते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, वो हमारा लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिसमें क्राउन डेंसिटी 40% से 70% है, वो हमारा लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और ओपन फॉरेस्ट, जिसकी क्राउन डेंसिटी 10% से 40% तक है, वो हमारा 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ट्री कवर में हमारे पास लगभग 3,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारा जो ग्रीन इंडिया मिशन में जो सबसे जो मेन फोकस है, वो ओपन फॉरेस्ट है, स्क्रब फॉरेस्ट है, जिसमें कि रूट स्टॉक है, थोड़ा है या ज्यादा है, और उसको हम कैसे वनों के रूप में जल्दी विकसित करें। ये एक उसमें जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो थ्रस्ट इस पे, जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट जो 5 मिलियन हेक्टेयर वाला। तो हमारे पास एरिया भले ही 33% है, लेकिन उसमें अभी बहुत स्कोप है, हम अपने इसको क्वालिटेटिवली इंप्रूव करना, डेंसिटी वाइज इंप्रूव करना। अब हम आते हैं जिम की ये ग्रीन इंडिया मिशन, ये डिफरेंट क्यों है। कई सारी हमारी जो एफॉरेस्टेशन स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम भी है, हमारी स्टेट की भी जो स्टेट प्लान के अंतर्गत भी हम वृक्षारोपण करते रहते हैं, हर साल करते हैं।
और हमारे जो है दूसरी भी, जैसे पहले एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट से भी जो है सामाजिक मानकीकरण के अंतर्गत भी काफी काम हुआ था। तो लेकिन उसमें हम मूलतः क्या करते हैं कि या तो फॉरेस्ट लैंड पे हम जो है प्लांटेशन करते हैं, गैप फिलिंग करते हैं। इसमें एक डिफरेंस देखते हैं कि कहाँ खाली लैंड्स हैं फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के बाहर, और उनको प्लांटेशन के लिए लेते रहे हैं और काफी प्लांटेशन करते रहे। इसमें हम जो है ब्लाइंडली केवल ये नहीं है कि एक लैंड खाली है और उस पर हम वृक्षारोपण करते हैं, या हम जो है जैसे अभी सिल्वीकल्चर ऑपरेशन के तहत जो है हम उसमें लगाते हैं कि गैप फिलिंग करते हैं 200 प्लांट्स लगा करके और थोड़ा सा वहाँ डेंसिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें यह है कि यदि हम सारी स्टेट को ले लेंगे, हर डिवीजन को ले लेंगे, हर डिवीजन के टोटल फॉरेस्ट एरिया को ले लेंगे, तो उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो एक डिफरेंस ये है कि हमें थोड़ा काम हम कर पाएंगे बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज से तो हम किन एरियाज को टेकअप करें, तो एरियाज हम ऐसे टेकअप कर रहे हैं कि जहां पे जरूरत चेंज के आलोक में कौन कौन से एरियाज हैं जो ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं, जो जंगल अफेक्ट होंगे और वहां के लोग अफेक्ट होंगे, और उसमें यदि गरीब और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग वहां ज्यादा रहते हैं तो वो भी एक प्रायोरिटाइज करने का मुख्य आधार है। तो इसमें जो हम लैंडस्केप्स को जो सेलेक्ट करते हैं, एरियाज को जो सेलेक्ट करते हैं कि एक मेजर लैंडस्केप, ब्रॉडर लैंडस्केप जिसको कहते हैं कि L1, उसको हम प्रायोरिटाइज कैसे करें कि हमारे राज्य में तो हम जो है एक डिवीजन एक लैंडस्केप की तरह हो जाती है लगभग, तो इस तरह लेंगे तो हम जो है हमको 30-35 लैंडस्केप हो जाएंगे, और हर लैंडस्केप में हम सभी रेंजेस को लेने लगे तो इतना संभव नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं। तो हम उनको लेंगे जो सबसे ज्यादा जो है वल्नरेबल और प्रभावित होने के कगार पे हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना। तो लैंडस्केप्स को प्रायोरिटाइज करते हैं L1 के रूप में। L1 के अंदर फिर जाते हैं कि उसके अंदर ऑपरेशनल एरियाज कौन कौन से लें। मान लीजिए एक डिवीजन लेते हैं तो डिवीजन के अंदर हम L2 में कौन सा एरिया है, कौन सा रेंज है, या मान लीजिए 5 में से 2 रेंजेस हैं, उसमें कौन से एरियाज ज्यादा वल्नरेबल, और फिर उसके बाद आएंगे एक्चुअल वर्किंग यूनिट। एक्चुअल वर्किंग यूनिट भी पूरा राज्य है काम करने के लिए, तो लेकिन इसके अंतर्गत हम कौन से एरियाज को एक्चुअल वर्किंग के लिए सेलेक्ट। तो इसके अंदर जो हमारा एक, अब यूं समझें कि ये पूरी पिक्चर थ्योरेटिकली तो बहुत बड़ी हो सकती है कि हजारों हजारों करोड़ रुपया हमको हर साल चाहिए, लेकिन जब हम प्रायोरिटाइज करके प्रैक्टिकल उसमें आते हैं तो हमें कुछ ऐसा बनाना है कि 1 साल का जो हम पूरी स्टेट का एक APO बनाएंगे तो उसमें हम 20 से 30 करोड़ रुपए का APO तैयार किया जाएगा। तो लगभग 30 करोड़ का APO बनाएंगे तो हम उसी हिसाब से कामों को डिविजन्स में अपना प्रपोज करें। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा जो है अनरियलिस्टिक तरीके से प्रपोज करेंगे तो उतना काम करने के लिए हमें मिलेगा। तो ये जो हमारा डिफरेंस है कि इसमें लैंडस्केप अप्रोच अपनाई जाती है, और लैंडस्केप अप्रोच अपनाने में हम उन एरियाज को प्रायोरिटी पे लेते हैं जहां पे कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले असर प्रभाव जंगलों पे लोगों पे ज्यादा हो। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट जिस पे बात करेंगे वो है कि हमारे जो ऑफिसर्स एंड स्टाफ, जो हमारे फ्रंट लाइन में काम करने वाले रेंज ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, और उनके साथ हमारे JFMC के सदस्य भी, उन सबको भी स्कीम के बारे में एजुकेट करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उन सभी के रोल होते हैं, प्लानिंग में भी उनका रोल है। जब वो ये लैंडस्केप आइडेंटिफाई करने हैं, जो मैंने भी कहा कि L1, L2, L3, तो L3 में हम गांव के लेवल पे पहुंच जाते हैं। माइक्रो शेड्स के टर्म्स में कहेंगे तो माइक्रो वाटर शेड लेवल पे पहुंच गए, और प्रैक्टिकल अगर वैसे समझें लेमन टर्म्स में तो गांव स्टेज पे एक गांव, एक JFMC का क्षेत्र, एक L3 लैंडस्केप या एक्चुअल वर्किंग यूनिट होगा। तो हम इसमें से हमारे पास हो सकता है कि एक डिवीजन के अंदर जो है 500 गांव हैं, लेकिन हम यदि उसमें से हमको 10 या 15 गांव चुनने हैं तो वो क्लस्टर की फॉर्म में लेना बेहतर है। तो जहाँ पे एरिया जैसे कि रेंज लगभग हो जाता है एक L2 लेयर के रूप में या L2 लैंडस्केप, और उसके अंदर फिर L3 कौन सा क्लस्टर है, 5-7 गांव हैं
जिसमें कि हम इस तरह की अपनी इंटरवेंशन अलग अलग, मैं सबमिशंस पे आऊंगा कि क्या क्या काम करना है, केवल बड़ी योजना नहीं है। तो हमारे इसमें जो है गांव के लेवल पे जो मैंने बताया, जैसे हमारे यहाँ माइक्रो प्लान्स काफी हमें तैयार किए गए हैं, उसके लिए जेएमसी के सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी गई थी और हमारे जो फील्ड स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी। तो वो उससे जुड़े और काफी बड़ी संख्या में माइक्रो प्लान्स बनाए हैं। तो गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, कैसी कितनी डिपेंडेंस जंगलों पे, क्या क्या चीजें प्राप्त करते हैं, कब गांव उसमें जंगल में जाते हैं, कब कब और चीजें करते हैं, स्वास्थ्य की क्या चीज है, कौन सी बीमारी होती है, किस चीज से कितनी आय होती है जंगल की मदद से, इन सब चीजों को उसमें माइक्रो प्लान डाला गया है। उसके आधार पे वनों के विकास और गांव के विकास के बारे में कुछ प्लानिंग की गई है। तो उसमें हमारे गार्ड्स का रोल रहा है, हमारे ऑफिसर फॉरेस्टर्स का रोल रहा है। तो जैसे हमने माइक्रो प्लान्स बनाए हैं, तो माइक्रो प्लान से ही हमको आगे चलना है कि माइक्रो प्लान हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली, उसमें भी हमने कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, निर्भरता क्या है जंगल पे। तो माइक्रो प्लान के लेवल से वहाँ रोल है प्लानिंग में कि कौन कौन से गांवों को इसमें लिया जाए मिशन में। और उसके बाद फिर एफडीए लेवल पे आ जाते हैं, तो वहाँ हमारा जो है, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको रोल प्ले करना है, जो सहायक वन संरक्षक है, जो रेंज ऑफिसर है, उनको वहाँ रोल प्ले करना है। और वहां से उन्हीं चीजों को कंबाइन और कोलेट करते हुए सारे जो आपके मान लीजिए एक डिवीजन में 15 गांव, 20 गांव, 30 गांव यदि आ रहे हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग रेंज से, 1 या 2 रेंज से, उन सब का फिर आपका जो पर्सपेक्टिव प्लान आप एफडी लेवल पे बनाते हैं और उसको जिला जो प्लानिंग कमेटी है उसमें भी ले जाते हैं। वहां से अप्रूवल लेने के बाद आप उसको यहाँ भेजते हैं, जो एसएफडीए है रांची में झारखंड की। यहाँ फिर उस पर जो है स्क्रूटनी होती है और उसके लिए एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है और स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है उसमें ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से जब वो अनुमोदन हो जाता है या सुधार जो भी जरूरत हो वो करने के बाद फिर भारत सरकार को भेजते हैं। तो हमारा गांव के स्तर पे और एफडी लेवल तक जो है हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ का सीधा रोल है कि प्लानिंग में भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप्स में L3 लेवल पे और L2 लेवल पे, और फिर जब ये अनुमोदन होकर के आ जाएगा एपीओ तो उसको फिर एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूशन में उनका पूरा रोल है। और उसके बाद जो मॉनिटरिंग इवेल्युएशन है, बाद में रिपोर्ट भी हमें करना है कि क्या चेंजेस आए, क्या चीजें हम कितना असर कर पाए क्लाइमेट चेंज के आलोक में। तो उन चीजों को भी वो फिर मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन और रिपोर्ट करने में तीनों स्टेजेस पे, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग इवेल्युएशन, सभी स्टेजेस पे उनका रोल है। तो उनको स्कीम के बारे में जानना आवश्यक है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि हम ये जो इसमें लैंडस्केप अप्रोच में जो L1, L2, L3 तीन स्तर पे जो लैंडस्केप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको कैसे करना है, क्योंकि यही चीज जो है अक्सर क्लियर नहीं हो पाती है कि L1 में क्या करना है, व्हाट इज L1, इज L2, व्हाट आर L3। अब हम सेलेक्टिंग लैंडस्केप इसके बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। तो इसमें जो मिशन के अंतर्गत जो L1, L2, L3, तो जो हमारा L1 है वो जो चेंजेस हो चुके हैं उसके आलोक में और जो अगले 10, 20, 30 साल में होने वाले हैं उसके आलोक में कौन से एरियाज वल्नरेबल है। तो एक मैक्रो लेवल पे कौन सा रीजन ज्यादा वल्नरेबल है, उसके अंदर फिर हम L2 और L3 में जाएंगे। तो इसमें पहले एक ब्रॉड लेवल पे, मैक्रो लेवल पे हमको जो है लैंडस्केप आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हमको फिर L2 लेवल पे जाएंगे तो ऑपरेशनल यूनिट हम उसको कहेंगे। अभी बाद में, और उसके बाद हम L3 पे जाएंगे। तो L1 जो लैंडस्केप है स्टेट लेवल पे,
हमको ब्रॉड लैंडस्केप को आइडेंटिफाई करना है और इसमें कौन से लैंडस्केप होंगे जो हमारे इंटरेस्ट के हैं या इंपॉर्टेंस के हैं या ज्यादा वल्नरेबल। और L2 को हम कहेंगे ऑपरेशनल यूनिट्स, और ये 1 मिली वाटरशेड साइज के होंगे। और अगर हम अपने सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो ये एक ब्लॉक लेवल या रेंज लेवल में जितना क्षेत्र आता है उसको हम ऑपरेशनल यूनिट या L2 लैंडस्केप। और L3 में हमारे वर्किंग यूनिट्स आएंगे। वर्किंग यूनिट्स, वर्किंग मींस एक्चुअल वर्किंग, जिनको हमने काम कराने के लिए सेलेक्ट किया। तो जो हमारी साइट्स होंगी, स्थल वाइज जो साइट्स होंगी, स्थल जो सेलेक्ट किए जाएंगे वो हमारे L3। L1 जो लेवल है, जो मैक्रो लेवल के जो हम लैंडस्केप को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमारी किस चीज को हम प्राथमिकता देंगे? हायर प्रायोरिटी फॉर ओपन एंड स्क्रब फॉरेस्ट। सिंपल टर्म्स में समझने के लिए कि जहां हमारे फॉरेस्ट एरियाज में जो काम करना है तो हम वो एरियाज लेंगे जहां हमारे, मैंने जैसे शुरू में बताया कि ओपन फॉरेस्ट हैं या स्क्रब फॉरेस्ट, ताकि हम उनमें अगर जो है ज्यादा पौधे कुछ लगा के और कुछ बचा करके उनको हम विकसित करने लगेंगे तो वो दोबारा से जंगल खड़े हो जाएंगे। बहुत ज्यादा जहां डेंसिटी ऑलरेडी अच्छी है वहां पे हम इंटरवेंशन के लिए नहीं चुनेंगे। वेस्टलैंड्स हैं तो वेस्टलैंड्स में भी हम आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ डिग्रेडेशन आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड फॉरेस्ट एरिया, जो डिग्रेडेड, जो ज्यादा डिग्रेड हो गए हैं या हो रहे हैं, ऐसे एरियाज को चुनेंगे। और जो वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर एक दूसरा, केवल फॉरेस्ट नहीं, हम पॉपुलेशंस का भी, जो मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया, वो ये है कि आइडेंटिफाई कंसेंट्रेशंस ऑफ एससीज एसटीज एट डिस्ट्रिक्ट एंड एट ब्लॉक लेवल। तो इस तरह से हमको आइडेंटिफाई करना है अपने L1s को और उसके अंदर L2। अब L1 को आइडेंटिफाई करने के बाद हम तो L1 का जो आकार हो सकता है वो 50,000 जो है हेक्टेयर से लेकर के 1 लाख हेक्टेयर जैसा हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, ताकि खुद समझना और अपने सभी हायरार्की को समझाना, तो हम ये लेकर के चलेंगे कि हम डिवीजन को एक L1 मान सकते हैं। डिवीजन तो जनरली हमारे डिविजन्स में जो एरियाज है स्क्वायर किलोमीटर में लेंगे तो 500 स्क्वायर किलोमीटर से 1000 स्क्वायर किलोमीटर जैसे एरियाज हैं। तो जो 500 स्क्वायर किलोमीटर है तो वो आपका 50,000 हेक्टेयर हो जाता है। उधर जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर आपका 1 लाख हेक्टेयर हो जाता है। तो आपका ये एक डिवीजन को हम मैक्रो लेवल पे एक L1 आइडेंटिफाई कर सकते हैं। L1 के अंदर जो L2 हमको सेलेक्ट करने हैं कि उसके अंदर अब हम कौन सी रेंजेस को में जाएं। ब्लॉक से ज्यादा अच्छा है यदि हम रेंज, बिकॉज हम रेंज को जब बेहतर समझते हैं। तो इसके अंदर प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटाइज इसके अंदर जो है हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि हमारे जैसे कौन सी रेंज या कौन सा ब्लॉक है, वो हो सकता है, वो हो सकते हैं, जिसमें कि जिनके अंतर्गत हमको इंटरवेंशन को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के आलोक, और इसमें हमारे जो L1 ये L2 एरियाज हैं, इनका एरिया हमारा 5 से 10,000 हेक्टेयर जैसा नॉर्मली एक L2 का होगा। एक L2 तो एक डिवीजन में मान लीजिए 2 L2 यदि दिए गए हैं तो 2 हो जाएंगे। 5 से 10,000 हेक्टेयर के 2 एरियाज, 2 रेंजेस हो सकती हैं यदि वो प्रायोरिटी में आती हैं कि हाँ वहां पे इतना डिग्रेडेशन, इतना L2 वाले में कुछ और बातें जिनको ध्यान में रखना चाहिए। ये L2 मैंने बताया कि एक जो सी रेंज है, लेकिन रेंज में हम किन किन बातों पे ध्यान दें प्रायोरिटी में चुनने के लिए।
वो ये है कि उस रेंज में हमारी बायोडाइवर्सिटी मान लीजिए रिच है और वो थ्रेटेंड है क्लाइमेट चेंज के आलोक में, वो पूरी तरह घटने लगेगी या घटनी शुरू हो गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। एक हो जाती है कि गरीबी, अगर वहां पे ज्यादातर लोग गरीब हैं और उनकी डिपेंडेंस जो है जंगलों पे भी ऑब्वियसली है, तो अगर कल क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स बढ़ेंगे तो दे विल बी अफेक्टेड मोर, और वो उतने तैयार भी नहीं है, उतने उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है कि वो मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाए। पॉवर्टी भी एक क्राइटेरिया उसमें आ जाता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि जब कल फीलिंग होंगी कहीं बारिश घट गई, ग्राउंड वाटर लेवल कम है और कम हो रहा है ऑलरेडी, और नीचे जाते हैं तो लोगों को पानी नहीं मिलेगा, चाहे वो इरिगेशन यूज करें चाहे पीने के लिए, दोनों में दिक्कत आती है। चौथा आ जाता है कुछ एरिया जैसे हो सकते हैं सिंचाई की बहुत अच्छी नहीं, कैनाल्स तो नहीं है और स्रोत बहुत कम है, तो और वहाँ पे मेन डिपेंडेंस यदि रेन पर, रेन फेड फार्मिंग ही मुख्य है वहाँ की खेती का तरीका, रेन फेड फार्मिंग क्रॉप लेते हैं शायद, तो वो भी एक पैरामीटर है प्रायोरिटाइज करने के लिए हम इस डिवीजन के अंदर कौन सी रेंज को चुने। और फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस, कल फॉरेस्ट अगर खराब होंगे तो जो लोग निर्भर उनकी हस्ती खराब होगी, दे विल बी अफेक्टेड मोर। तो ये क्राइटेरिया जो हैं इनको ध्यान में रखते हुए हमको अपनी रेंज चुनी, डिवीजन में कौन सी रेंज। अब रेंज के अंदर हम जाएंगे, अब L3 लेवल पे की एक्चुअल कौन कौन से गांवों को चुने। गांव को क्यों चुन रहे हैं, हो सकता है हम पे पैसे रिसोर्स बहुत होते तो हम पूरी रेंज ले लेते, क्योंकि पैसों का एक लिमिटेशन है, तो हम फिर उसमें विलेजेस को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करेंगे, वो हमारा आ जाता है। तो इनको हमने कहा L2 को ऑपरेशनल यूनिट्स, और जो L3 आएंगे जिनमें की एक्चुअल स्थल साइट्स हम सर्वे करेंगे, वो हो जाता है, उनको हम कहते हैं वर्क स्पॉट्स और L3 लेवल वर्किंग यूनिट्स कहते हैं। और उनमें हम अपनी जो इंटरवेंशन है, सबमिशन में उस पर बात करूंगा, कौन कौन से सबमिशन हैं, क्या क्या इंटरवेंशन हम उसमें कर सकते हैं इस योजना में। तो L3 आर दी एक्चुअल वर्किंग यूनिट्स। इसके अंदर के यह हमारा L2 का हुआ, जो कि लगभग एक हम मान के चलेंगे एक रेंज का एरिया, ऐसी रेंज जो प्राथमिकता पे लेनी चाहिए। उसके अंदर जो अभी ये L3 आएगा, तो एक L3 एक रेंज के अंदर मान लीजिए 10 L3, तो वो अगर 5 से 10 हजार स्क्वायर ये हेक्टेयर एरिया था, उसके अंदर जो एक एक लगभग जो L3 लेंगे, एक माइक्रो प्लान का एरिया, एक गांव का एरिया, तो वो लगभग हमारा, ये हम 10 साल के लिए बात कर रहे हैं या 5 साल के लिए, तो हम उसमें 500 हेक्टेयर तक का एरिया एक डिवीजन में लगभग जो है उसमें चुनेंगे। अगर एक रेंज, यदि दो रेंज कहीं से हम दो रेंज में ले रहे हैं, तो हम जो 500 1000 हेक्टेयर, और उस 500 हेक्टेयर को ले रहे हैं तो हम उसको बांटेंगे 5 साल में। यदि हम बांटते हैं 5 साल में, यदि बांटते हैं तो एक तरह से लगभग 100 हेक्टेयर हम हर साल करते जाएंगे, और उसी तरह हम अपना गाँव को इंक्लूड करेंगे कि 500 हेक्टेयर में इन गाँवों को ईयर वाइज। ठीक है, इस तरह से हम अपने एक्चुअल साइट्स का चयन करेंगे। तो इस सारी चीजों में L1 सेलेक्ट करना है, L2 L3। तो L1 में तो थोड़ा सा ये है कि हमें हर डिवीजन में, क्योंकि सभी जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हैं क्लाइमेट चेंज के आलोक में, तो हम सभी डिवीजन से प्रपोजल्स जो मांगे गए हैं वो ये है कि आप अपने डिवीजन के अंदर जो है प्रायोरिटाइज कीजिए जो मैंने पैरामीटर्स बताए, और अपने यहाँ से एक रेंज या दो रेंज में एरिया चुनिए, और फिर उसके अंदर विलेज लेवल तक जाइए। माइक्रो प्लान्स को लेकर माइक्रो प्लान्स में से फिर चीजों को निकालिए कि कितना एरिया वहाँ पे लिया जा सकता है अलग अलग इंटरवेंशन के लिए, फॉरेस्ट एरिया की और नॉन फॉरेस्ट एरिया, ताकि जंगलों का विकास भी हो, गाँवों का विकास। और ये एक जो है, ये सेलेक्टिंग लैंडस्केप एंड ऑपरेशनल यूनिट्स,
इसके बारे में ये ग्रीन इंडिया मिशन की एक एडवाइजरी है जो 2011 में इशू हुई थी, जिम एडवाइजरी 1.1। और भी 3 एडवाइजरीज इशू हुई हैं इसमें अलग अलग समय पे, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बाकियों में ज्यादातर रेपिटेशन है, तो ये कॉपीज भी आप सभी ऑफिसर्स को, सभी डिविजन्स में ये ईमेल से मैं भेजूंगा, बिकॉज इनकी हमें जरूरत है अपनी प्लानिंग करनी और अपने प्रपोजल तैयार करने। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, सेलेक्टिंग लैंडस्केप हमने कर लिया। अब हम आते हैं कि जिम के अंतर्गत कौन कौन से सबमिशंस हैं और उन सबमिशंस में क्या क्या इंटरवेंशंस और एक्टिविटीज हैं जो हम ले सकते हैं। एक मिनट जरा मैं वो पेज खोल देता हूँ। ये जो हमारे जिम के अंतर्गत सबमिशंस वाइज में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस किस तरह के हम काम इसमें ले सकते हैं। सबमिशन वन है एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड इंप्रूविंग इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इसको मोटे तौर पे समझिए, एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर, कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं और जो हमारे उसमें अलग अलग कैटेगरी के फॉरेस्ट हैं, कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं 40 से 70% क्राउन डेंसिटी वाले, बट शोइंग डिग्रेडेशन। जो हमने प्रायोरिटी शब्द यूज किया है कि कौन सा एरिया, तो बट शोइंग डिग्रेडेशन। दूसरा इसमें कैटेगरी जो हम ले सकते हैं वो है इकोसिस्टम, इको रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड ओपन फॉरेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेजर थ्रस्ट इसी पर है। और इसके अंदर 3 कैटेगरीज दी हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। मतलब डिपेंड्स की, जिसमें थोड़ा सा डिग्रेडेशन है, थोड़े ओपन है, कुछ ज्यादा ओपन है। एक जगह शायद 10% 15% है ग्राउंड डेंसिटी, एक जगह शायद 30% है। तो उस तरह से तीनों कैटेगरीज दी गई। रेस्टोरेशन ऑफ ग्रासलैंड्स भी उसमें आता है, बिकॉज उससे भी लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है, जितने हमारे मवेशी वहां चलते हैं, या हमारे इवन जो वाइल्ड लाइफ है उनके भी वो उपयोग की चीजें ग्रासलैंड जो जंगलों में। दूसरा सबमिशन है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एंड इंक्रीज इन फॉरेस्ट। इसका मूल सार है कि इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। पहला सबमिशन था एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर। इसके अंतर्गत जो है लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर का हमारे पास लक्ष्य इस पूरे देश के लिए। और ये जो बताया इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर में भी हमको जो है लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर वाला वो है। तो इसमें हमारे पास रिहेबिलिटेशन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज, ये हमारे राज्य में ऐसा नहीं है। रिस्टोरिंग स्क्रब लैंड्स हमारे यहाँ एक मेन थ्रस्ट एरिया आ जाता है। ऊपर वाले में जैसे सबमिशन 1 में देखा कि डिग्रेडेड ओपन फॉरेस्ट, इसमें अगर लेते हैं तो हम रिस्टोरिंग स्क्रब लैंड्स इसको लें। इसमें हम जो है 1100 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगा सकते हैं, दोबारा से वन आच्छादित करने के लिए। इसके अलावा और भी इसमें जो एक्टिविटीज या इंटरवेंशन है वो है रिस्टोरिंग प्लांटिंग सीबक, थॉर्न, रेस्टोरेशन ऑफ मैनग्रोव्स, ये हमारे यहाँ नहीं है। रेवाइन रेक्लेमेशन, रेवाइन्स भी हमारे यहाँ इतना इंसिडेंस नहीं है। रेस्टोरेशन ऑफ अबेंडेंड माइनिंग एरिया, ये भी एक है। इसमें भी हम कुछ एरिया यदि है वहाँ पड़ता है उसको भी लिया जा सकता है। तो ये चीजें इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जो हैं ग्रीन इंडिया मिशन की सभी डिविजन्स को भेजी जा चुकी हैं पहले। तो इनको आप देखेंगे तो ये सारी चीजें उसमें हैं, सब मिशन वाइज क्या क्या चीजें हैं।
तो हम उसमें से देख रहे हैं कि कौन सी मेजर एक्टिविटी है जो हमको इन चीजों में, इन 2 सबमिशन में सूट करती हैं या प्राथमिकता पे लेनी चाहिए, और एरियाज को हम अपना सेलेक्ट करेंगे वल्नरेबिलिटी एंड प्रायोरिटी। तो डिग्रेडेड ओपन फॉरेस्ट में अपना डेंसिटी बढ़ाना, रिस्टोरिंग स्क्रब लैंड्स, इसमें हमारा जो इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना की ग्रीन कवर बढ़े। और तीसरा सबमिशन है एनहांसिंग ट्री कवर इन अर्बन एरियाज एंड पेरी अर्बन एरियाज। इसमें हमारा इंस्टीट्यूशनल लैंड्स भी आएंगे। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं या डिपार्टमेंट्स के पास जो बड़ी बड़ी लैंड्स पड़ी हुई हैं, उनसे भी संपर्क करके जो लोग उसमें विलिंग होते हैं या सहमत होते हैं, वहां पे भी एरियाज को प्लांटेशंस के लिए लिया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में, पेरी अर्बन एरियाज में तो इंस्टीट्यूशनल लैंड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे प्रस्ताव इसमें मिल सकते हैं। और चौथा जो एक और इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। अक्सर हम यही सोचते हैं कि जैसे बस एक प्लांटेशन स्कीम है, प्लांटेशन के लिए कुछ साइट देना है, चाहे वो जंगल में हम डिग्रेडेड फॉरेस्ट वाले उसमें दें आरडीएफ और सिल्वीकल्चर की तरह, या बिल्कुल ब्लैंक हो तो प्लांटेशन क्यूजीएस की तरह। लेकिन हम एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत इसमें काफी बड़ा एरिया है, 3 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास इसमें है। ये बहुत बड़ा एरिया है जिसपे कि हम अभी उतना ज्यादा काम नहीं करते। तो इसमें फार्मर्स लैंड इंक्लूडिंग करंट फेलोज, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास लैंड से और खाली पड़ी हुई, उसमें खेती भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उतना सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ ट्री प्लांटिंग लिया जा सकता है। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन से, और हाईवेज और रूरल रोड्स और कैनाल्स और टैंक बंड्स के किनारे भी प्लांटेशन लिया जा सकता है। इसमें काफी बड़ा लक्ष्य है। तो अगर ये देखते हैं कि इसमें इस स्कीम में देखें तो जो हम अलग अलग, जैसे अभी मुख्यमंत्री जनधन योजना या और कई योजनाएं चल रही हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, कृषि विभाग के माध्यम से भी योजनाएं चल रही हैं। तो हमारे पास अगर देखें ग्रीन इंडिया में तो सभी तरह की लैंड्स पे हमारे पास कोई ना कोई एक मिशन है, सब मिशन। तो उस पर ध्यान देंगे तो हम इसी में से बहुत सारी स्कीम्स ली जा सकती। और फिर एक इसमें छठा जो एक सबमिशन है, रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स भी इसके अंतर्गत है। तो वेटलैंड्स का भी प्रस्ताव यदि कहीं है प्रायोरिटी की चीज, प्रायोरिटी, तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं। छठा एक इसमें यह है प्रमोटिंग ऑल्टरनेट फ्यूल एनर्जी। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी और यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड आधारित जितने डिवाइसेस हैं उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना अपने प्रायोरिटी एरियाज, जिन एरियाज को आपने सेलेक्ट किया है उन गांवों में उस L1 L2 में। और इन कामों को करने के साथ साथ इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि शॉर्ट में ही मैं बताऊंगा, वो ये है कि ये हमें थोड़ा साथ में, जैसे हमें कुछ और भी मुश्किलें होती हैं या कुछ और भी हम करना चाहते हैं जब गांव चले जाते हैं, वो ये है कि हमारे पास रिसर्च के लिए भी जो हम इसमें इंटरवेंशंस पे जो है जितना एक प्रपोजल देंगे, तो उसका एक प्रतिशत के रूप में जितने हमारे ऊपर के इंटरवेंशंस है, तो रिसर्च के लिए भी हमारे पास कुछ पैसा 2% के रूप में मिलता है, और पब्लिसिटी और मीडिया आउटरीच के लिए भी थोड़ा मिलता है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन के लिए भी मिलता है, और लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज, यदि हम कुछ चीजें करना चाहते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, लाइवलीहुड कोई स्किल ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं, तो उसके लिए 17% जो हम ये प्लांटेशन और दूसरे जो ऊपर मैंने बताया सब उन पे जो प्रपोज करेंगे, इतनी बड़ी राशि हमको लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज के लिए भी मिलती है। और स्ट्रेंथनिंग लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी सपोर्ट मिलती है 5%। स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसमें भी 5% मदद मिलती है, और मिशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कंटीजेंसी रखा जाता है। ये है इसमें जो क्या क्या सबमिशंस हैं, ये इसमें मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस। क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस एक तो जो क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस भी एक इसमें खास बात है, वो ये है कि इसमें एक तो मैंने जो बताया कि इम्प्रूव्ड फ्यूल यूज एफिशिएंसी एंड प्रमोटिंग ऑल्टरनेटिव एनर्जी, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो है डिवाइसेस के उपयोग को बढ़ाना। दूसरी ये 4 और इंटरवेंशंस हैं, क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस इनको कहा जाता है कि सोसाइटी में इनका
इनसे काफी मदद मिलती है। जैसे हम अगर फ्यूल की डिपेंडेंस, मान लीजिए अल्टरनेट हम एलपीजी का उसमें यूज किसी इलाके में बढ़ता है, या रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी बेस्ड इक्विपमेंट्स का यूज बढ़ाते हैं ऐसे वल्नरेबल और प्रायोरिटी एरियाज में, तो उससे ऑब्वियसली उधर जंगलों में जो फ्यूल वुड रिमूवल के रूप में कमी आती है और उनकी हेल्थ कंडीशंस भी इंप्रूव होती है, उनको इलाज में कम खर्चा करने की जरूरत पड़ती है। तो दूसरी क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन है कम्युनिटी लाइवलीहुड एनहांसमेंट। ये भी इसमें हमारे पास एक वो है कि हम इसमें लोगों को किस किस तरह की ट्रेनिंग्स देनी है और किस किस तरह का कुछ सामान देना है या कोई मशीन देनी है जिससे कि वो कुछ बेहतर कर सके, बेहतर कमा सके अपने अपने परिवार। तीसरा इसमें क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस में है कॉरिडोर्स फॉर कनेक्टिविटी, उनको भी हम इसमें अटेंड कर सकते हैं। जहां कॉरिडोर्स हैं फॉर कनेक्टिविटी उनको भी टेकअप कर सकते हैं। चौथा है कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज एंड सेक्रेड ग्रोव्स। कहीं कहीं पे हम आप देखते होंगे कि कुछ एरियाज सोसाइटी ने कंजर्व किए हुए हैं और उसमें उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब जो है कुछ जैसे बायोटिक प्रेशर, कुछ मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं, तो उसमें अगर उन्हें कुछ फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी इसमें सेक्रेड ग्रोव्स भी आते हैं। कुछ सेक्रेड ग्रोव्स हैं कुछ जगहों पे, उनको भी बचाने में इससे मदद ली जा सकती है। पांचवा एक क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस में है एरियाज, ऐसे एरियाज जो हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के, हाइड्रोलॉजिकल पानी कहाँ से, जैसे हमारा जैसे कुछ कैचमेंट है, कहाँ कहाँ से पानी, चाहे वो जमीन के ऊपर है चाहे जमीन के नीचे है, तो जो ऐसी इंपॉर्टेंस के एरियाज भी हैं जिसके ऊपर हमारी निर्भरता है, हो सकता है शहर की है, किसी नगर की है, तो ऐसे एरियाज भी प्रायोरिटी में लेते हैं और उसमें हम इसके अंतर्गत भी कुछ काम, कुछ इंटरवेंशंस कर सकते हैं। अब मैं आऊंगा कि हमारा जिम का सेटअप क्या है। जिम का सेटअप जस्ट थोड़ा सा एक पिक्चर देते हैं। जिम का सेटअप मतलब इसलिए बता रहे हैं कि अलग अलग लेवल पे, जैसे मैंने रूल ऑफ गार्ड, फॉरेस्टर्स और रेंज अफसर्स का बताया, तो ऐसे ही इसमें है कि हमारे सबसे जो नीचे हमारा जो L3 लेवल है, एक्चुअल वर्किंग यूनिट्स, तो हमारा विलेज माइक्रो प्लान हमें बनाने की जरूरत होती है। जहां बन चुका है तो हम उस स्टेज में तैयार, अब तो केवल हमको सेलेक्ट करना है वो जो L1, L2, L3 प्रायोरिटी पे, वल्नरेबिलिटी पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा अप्रूव विलेज माइक्रो प्लान है, तो अप्रूवल जिसका ग्राम सभा देती है। दूसरा लेवल उसके ऊपर आ जाता है FDA लेवल। FDA लेवल ये स्कीम जो इसका कार्यान्वयन FDA के माध्यम से, तो FDA और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो इस लेवल पे हम क्या तैयार करते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान बनाते हैं L2 का, हर L2 का अलग अलग पर्सपेक्टिव प्लान तैयार और उसका FDA से और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से अप्रूवल चाहिए। तीसरा फिर वो डिवीजन से FDA से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ SFD में आने के बाद SFDA में स्क्रूटनी होती है और उसको फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ SFDA और स्टेट स्टीयरिंग कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित है, वहां पे उसकी स्क्रूटनी और वहां से फिर अनुमोदन प्राप्त करते हैं भारत सरकार को भेजने के लिए। और उसी के साथ जो है गवर्नमेंट जो है बजट का प्रावधान करती है स्टेट शेयर के लिए। स्टेट का जो 40% शेयर है, इसका फंडिंग पैटर्न मैंने नहीं बताया। इस स्कीम का फंडिंग पैटर्न है 60%, 40%, सेंट्रल शेयर 60% और स्टेट शेयर 40%। तो एक तरह से हम अपनी किटी को बढ़ा लेते हैं, अपने काम के साइज को बढ़ा लेते हैं कि जो हम 40 जो पैसा हम स्टेट से खर्च करते हैं, यदि हम उसको मुख्य रूप से अपने 40% के रूप में इस स्कीम में उसको सबको ले आए, अधिकांश को ले आए, तो हम उसके साथ 60 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला सकते। तो एक ए सर्टेन पार्ट ऑफ दी जो हम जो उधर इंटरवेंशन है उनको इधर डाल करके उसके साथ हम 60% अपना बढ़ा सकते हैं। और फिर ये चौथा आ जाता है मिशन डायरेक्टरेट का लेवल आ जाता है। स्टेट के बाहर भारत सरकार में चले गए तो वहां पे ग्रीन इंडिया मिशन की डायरेक्टरेट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में, वहां पे वो लोग जो है जो हमारे पर्सपेक्टिव प्लान होते हैं उनकी स्क्रूटनी करते हैं, रिव्यू करते हैं, हमारे एपीओस की स्क्रूटनी करते हैं और उसको फिर आगे पुट अप करते हैं अप्रूवल्स के लिए।
और जिम की जो काउंसिल है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन है, वहां से फिर अप्रूवल लेते हैं तो फिर डायरेक्ट उसको नीचे पास ऑन करती है और फिर रिव्यू करती है, रिलीजेस करती है पैसे की, और मॉनिटरिंग इवेल्युएशन रिपोर्ट्स लेती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह। ये इसका सेटअप हो गया कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जिम का क्या है। अब मैं आता हूँ एक लास्ट उस पे कि हमारे अब हम ग्रीन इंडिया मिशन में अभी क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी जो है ऐसे जनवरी से एक्सरसाइज शुरू हुई और उसमें थोड़ा सा मोमेंटम शुरू हुआ था कि कोरोना की महामारी का समय शुरू हुआ और जो अभी भी चल रहा है। तो इसके अंतर्गत जो है हमने अपने पर्सपेक्टिव प्लान, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कैसे बनाने हैं, तो हर डिवीजन को अपना अपना पर्सपेक्टिव प्लान बनाना है। L1 तो डिवीजन हो गई, तो L2 कौन सी रेंज, कौन सी एक रेंज या कौन सी दो रेंज आपकी ज्यादा वल्नरेबल हैं, उन सभी पैरामीटर्स। फिर उसके अंदर कौन कौन से गांव को आप वो ज्यादा वल्नरेबल हैं जिनको आप सेलेक्ट करते हैं। तो अपना पर्सपेक्टिव प्लान, माइक्रो प्लान जो गांव का, उसमें तो आपका एक तरह से पर्सपेक्टिव प्लान है, जो भी उसने बताया कि इतने हम हेक्टेयर इसमें वन रोपण या ये चीजें करें या नॉन फॉरेस्ट लैंड पे ये करें, तो वो वहां से उठा करके हम उसको वो L3 को उठा करके ले आएंगे कि वो पर्सपेक्टिव प्लान है, और उसके बेसिस पे हम अपना L2 लेवल प्लान जो FDL पे बनेगा वो तैयार करें। तो पर्सपेक्टिव प्लान को भी जल्दी बनाना है और वो बहुत जल्दी सबमिट। तो मैं नहीं जानता कि अलग अलग डिविजन्स में आप किस स्टेज में कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सपेक्टिव प्लान जो है हर FDA का यहाँ पे हमको बहुत जल्दी चाहिए, वरना यदि हम लेट हो जाएंगे तो हमारे पर्सपेक्टिव प्लान को इंक्लूड नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ आने के बाद भी उसमें स्क्रूटनी होगा, उसमें कुछ कमी होंगी, उनका सुधार होगा, फिर वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएगा, फिर वहां पे उसमें डिलिब्रेशंस होंगी, उसके बाद अनुमोदन के बाद स्टेट स्टीयरिंग कमेटी में जाएगा, फिर वहां से उसमें कुछ जो है ऑब्जर्वेशन होंगी या कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे, उसके बाद तो समय यहाँ भी लगना है। आपके स्तर से जैसे काफी समय हो चुका है, तो आपके पर्सपेक्टिव प्लान्स और ये हमको बहुत जल्दी चाहिए। पर्सपेक्टिव प्लान में से ही पहला साल का जो चीजें होंगी वो APO तैयार हो जाएगा, APO 2021। तो इसके लिए मेरा सभी से अनुरोध है, और जो है ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग उसमें प्रॉम्प्टली इन चीजों पर वर्क करेंगे और अपना पर्सपेक्टिव प्लान सबमिट करेंगे बहुत जल्दी, कि इसी सप्ताह, एक सप्ताह के अंदर अपना पर्सपेक्टिव। कोई भी किसी तरह की क्वेरी है, डाउट है, तो वो जो है डायरेक्टली आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन क्लैरिफाई एनी डाउट्स। और इसके अलावा जो मैंने कहा कि जो कुछ रिटर्न मटेरियल है, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, और हमने पहले भी यहाँ से भेजी हुई है, एक बार दो बार। इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जरूर पढ़ना चाहिए, और एक दो पेपर और जो हमारा ये एडवाइजरीज जो मैंने बताया था, जिम एडवाइजरी 1.1 जो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा L1, L2, L3 के सिलेक्शन के बारे में। तो L2, L3 को जो है इसमें भेजें, और एक थोड़ा फॉर्मेट कुछ और भी पेपर हैं तो वो भी पास आज या कल ऑफिसर स्टाफ दे कैन पोस्ट। Thank you very much, sir. Hear me? Yes, sir. Thank you very much, sir. Please, participants, mute your mic. Queries हैं तो sir, queries हैं तो पूछिए, यदि हाँ, अगर ये participants, please, if you have any query, please ask to sir one by one. Please over to participants. अपना अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें, और उसके बाद फिर म्यूट कर दें। जी। Sir, this is Nitish from Bodahat, sir. Thank you for the presentation. हाँ नीतीश, please. Sir, इसमें
सर इसमें जो सबमिशन 4 है उसमें हाईवे साइड में प्लांटेशन का है, ये गैबियन बेस्ड है सर या वो लीनियर प्लांटेशन मल्टीपल रो विथ बार्ब्ड वायर है? मतलब वो इतनी जो ये स्टेट टू स्टेट जो है, हम अपने जो हमारे शेड्यूल्स होते हैं, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेज रेट भी अलग होता है, स्कीम्स और जो है तरीके जो है काम करने के भी अलग हैं, कहीं बैम्बू का लगा रहे हैं, कहीं पे और हो सकता है मेटेलिक यूज कर रहे हैं, कहीं पे कुछ ही आजकल कपड़े जैसा भी यूज कर रहे हैं हम यहाँ भी। तो ये जो है कुछ रेट्स, इसकी जो कॉस्ट नॉर्म्स हैं, जो कॉस्ट नॉर्म्स हैं वो एक रेट पे बनी हुई है। इसकी जो अप्रूव कॉस्ट नॉर्म जो 2014 बनी, वो 100 रुपए बेज रेट मान करके उन्होंने कॉस्ट नॉर्म्स दी। आप ये जो देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, इसमें जो इन्होंने दिया हुआ है फार्मर्स लैंड पे, यदि हम करंट फैलो लैंड पे करते हैं तो वहाँ पे 100 रुपए वाला जब वेज रेट के बेसिस पे 20,000 रुपया लिखा है पर हेक्टेयर, और अगर उसको हम अभी 249.83 पे करते हैं तो वो लगभग 50,000 रुपया होता है। फार्मर्स लैंड पे करने में हमको 50,000 रुपया है। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशंस में हमको लगभग 2 लाख रुपया है इस वेज रेट पे। आज वेज रेट अगर और बढ़ जाएगा तो और थोड़ा बढ़ जाएगा, ये 2 लाख रुपया है। इसमें करने पे 70,000 100 रुपया वेज रेट पे, जिसको कन्वर्ट हमने निकाला 249.83 पे, तो वो 1,75,000 रुपया लगभग हो जाता है। 1,75,000 रुपया अगर हैं पर हेक्टेयर, तो हेक्टेयर को आप अपना किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1,75,000 एक हेक्टेयर क्षेत्र में आपके पास है। अब आप उससे जैसे हमारा, फिर आपको क्या है कि आप अपने मनमाने ढंग से उसको 1,75,000 को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो शेड्यूल है विभाग का, जो समय समय पे निकलता रहता है गवर्नमेंट ऑफिस से, आप उसमें से जो एप्रोप्रिएट है जिसको आप एक्चुअली यूज कर रहे हैं, ताकि फ्रेश प्रपोजल और अनुमोदन की आवश्यकता न पड़े, तो आप वो जो एप्लीकेबल आपका शेड्यूल है उसको लगाइए, उसके आधार पर उसका जो आपका कॉस्ट की गणना करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं और क्या कॉस्ट, बट वो इसके अंदर रहना चाहिए। जैसे आपका हाईवेज पे 1,75,000 रुपया है, आई थिंक अच्छा अमाउंट है ये, जिसके अंदर शायद हमारा जो एस्टिमेट है या शेड्यूल है वो शायद इसमें आ जाए। यदि फिर भी अगर किसी खास चीज में मान लीजिए आपका शेड्यूल है वर्तमान वेज रेट पे सपोज 1,90,000 आता है और इसमें 1,75,000 मिलता है, 15,000 मान लीजिए पर हेक्टेयर रह जाता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से एक्स्ट्रा फिर उसको बेयर कर सकती है। ठीक है, एम आई क्लियर नीतीश? यस सर, थैंक यू। थैंक यू नीतीश। मतलब ये नहीं है अपना शेड्यूल, हमारे शेड्यूल सर सर सौमित्र शुक्ला। हाँ सौमित्र सर ये सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये जो ग्रासलैंड्स का है सर, इसमें मेंटेनेंस, तो ग्रासलैंड हम फॉरेस्ट के इनसाइड तो सर अभी ग्रासलैंड मेंटेन कर नहीं रहे हैं। हम जो भी अगर ग्रासलैंड होगा तो सर ये जीएम लैंड पे मतलब रैयत लैंड पे करना होगा हमें, या फॉरेस्ट लैंड पे भी ग्रासलैंड का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं? फॉरेस्ट के बाहर भी हो सकता है, जैसे जीएम लैंड्स हो सकता है, जैसे तो इसमें व्हाट इज योर मतलब व्हाट इज सौमित्र? सर इसमें क्वेरी क्या है? व्हाट इज योर क्वेरी? क्वेरी ये है सर कि जैसे अभी तक सर हम लोग ग्रासलैंड से रिलेटेड कोई स्कीम नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो मेनली ग्रासलैंड पे हमें जो फोकस होगा हमारा, जैसे जो हमारे पास ऑलरेडी फॉरेस्ट में जो फैलो लैंड है उसको यूज, उस पे प्रायोरिटी देंगे जब एपीओ फॉर्म कर रहे हैं, या फिर हमें सर रैयत वालों के लैंड उनसे बात करके उनके लैंड पे ग्रासलैंड करना होगा? ये सर थोड़ा जो हमारा ये रेस्टोरेशन ऑफ ग्रासलैंड है, इसको अगर आप देखोगे ये हमारा है एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर, इसके अंदर है। तो ये हमारा मूलतः ये कहता है कि जो हमारे फॉरेस्ट लैंड्स हैं उसमें जो ग्रासलैंड्स हैं उसमें हमको ये लेना चाहिए।
उन पे भी ग्रास, क्योंकि ये जो मिशन 4 है जो एग्रो फॉरेस्ट्री और सिविल फॉरेस्ट्री, उसमें ग्रासलैंड का इंटरवेंशन, फार्मर्स लैंड इंक्लूडिंग, तो कौन सा सबमिशन है उसके अंदर कौन कौन से इंटरवेंशंस अबाउट हैं, तो फिर उससे हमारा फॉरेस्ट लैंड वाला, और उसके लिए मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जो हमारा 249.83 का वेज रेट अभी पीछे था, उस पे अगर देखते हैं रेस्टोरेशन ऑफ ग्रासलैंड्स में, तो भारत सरकार जो उसमें रेट है उनका 87,400 रुपीज पर हेक्टेयर ग्रासलैंड्स के लिए वो उसमें दे सकती है, यदि हमारे पास अपना योजना है, और शेड्यूल हम अपने डेवलपमेंट से लेंगे, या अगर वाइल्ड लाइफ विंग में बना हुआ है वहां से लेंगे, क्योंकि ग्रासलैंड पे शायद वहां भी को बट इसमें जैसे अमाउंट्स देख करके ये थोड़ा पता चल जाता है कि ये वायबल है या यूजफुल, हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा ही बहुत तो ऑब्वियसली एक वो डेटरेंस हो जाती है कि नहीं से कुछ, तो पैसे की लिमिट यहाँ देखें और शेड्यूल अपना ढूंढे और उसे अप्लाई। और एक बात और चीज ये है कि जो जैसे पौधे का इनका जैसे मान के चल रहे हैं 1100 पौधे पर हेक्टेयर, हमारा 1100 पौधे का शेड्यूल नहीं है, 1000 पौधे का है, हम उसमें अपना लिखेंगे कि 1000 पौधे की हमारी इंटरवेंशन 1100 वाली नहीं है, 1000, वरना हमको फिर 1100 के लिए अलग शेड्यूल बनवाना पड़ेगा, उसमें फिर अलग समय प्रोसेस चलेगा। 1000 वाला कर रहे हैं, 1000 वाला ही हम अपना ला रहे हैं, उतना ही पैसा मांग रहे हैं। इसको देखना हमें चाहिए कि किस किस सबमिशन में कौन कौन सी इंटरवेंशंस अलाउड, और उनमें रेट्स क्या है, रेट्स से जल्दी पता चलता है कि इसको करना ठीक रहेगा। और कहूंगा कि हमें कल इसमें जो प्रस्ताव हमको जो प्रस्ताव आएगा तो वन में लाइए, जो है सबमिशन 2 में लाइए स्क्रब के बारे में, फिर जो हमारा फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री आना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल लैंड्स पे जो हो वो लाइए, और इसके अलावा फिर ये जो है फ्यूल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जैसे सोलर कुकर्स हैं, बायो जो आपका ये बायोगैस प्लांट्स हैं, या और चीजें हैं, होम लाइटिंग सिस्टम्स हैं, ये भी ला करके, बिकॉज लोगों की लाइफ वो रोशनी के लिए, वो ईंधन के लिए जंगल पर निर्भर करता है, और उसकी ऐसे भी लाइफ बेटर बनाना हमें बनाना चाहिए। वो भी होगा तो भी उसको कुछ जो इलाज पे खर्चे की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे जितने में नहीं हमें लाना चाहिए, केवल वृक्षारोपण उस पे गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, केवल वृक्षारोपण, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। और सर Okay, sir, Soumitra, thank you. Any participants? थैंक यू सर। If you have any questions. क्वेश्चन अराइज करता है तो गिव मी अ कॉल, आई एम हियर टू आंसर यू। Yes. बाद में भी क्वेरी है तो बाद में भी पूछ सकते हैं, जब आप अध्ययन करने इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन पढ़ें और अपना प्रस्ताव बनाएं, कहीं उलझे कहीं डाउट हो तो प्लीज गिव। So, sir, I think if there are no questions, yes, sir. I think they have no other questions. So, thank you very much, sir, for the enlightening session. And I think this is one of the pioneer sessions, sir, regarding Green India Mission. I have not heard of anything like Green India Mission in Jharkhand. Maybe in some divisions it has been discussed, but wherever I have been posted, there were no Green India Mission. So this is pioneer step taken by you, sir. And through this session, my DFO colleagues have been enlightened regarding Green India Mission, and I am also amazed that Green India Mission covers so much missions, sub-missions, and so much works which we can do to improve the condition of our people in Jharkhand, especially poor people, and also we can
take benefit of this Green India mission to enhance the livelihood options for the people in Jharkhand. And also we can improve the forest cover and enhance the density of our forest cover in Jharkhand through Green India mission. So we have a lot of opportunity in Green India mission, sir. Thank you very much, sir, for this enlightening session. And I think and I hope, sir, more sessions will be from your side in near future. And now I will request Diksha ma'am, CCF training, to say a few words. Please, ma'am. Diksha ma'am, can you hear me? Diksha ma'am, please. So I think Diksha ma'am is not listening me. So thank you very much, sir. I thank you, Vijay, for taking the initiative, and I thank all the participants, all officers and staff who was there today who joined this meeting. I thank you very much, and I look forward to, we must know what all types of schemes we are doing at the state level, what all we are doing, and that information should be shared. It should reach all levels. Yes, sir. Thank you, sir. So we are now ending this session. Thank you, everyone. Thank you, everyone from the field, seniors, colleagues, friends. Thank you. Thank you, everyone.